So, shall we say a quick prayer, asking the Lord to guide us through the Bible study, the remaining sections of the book of First Corinthians, and then we will look into the chapter 15 and chapter 16. Heavenly Father, we once again thank you, Lord, for your faithfulness. We thank you for your goodness, Lord, and we submit, Lord, to you at this time. Holy Spirit, you are our teacher. You lead us into all truth. And here we are committing ourselves to you. I pray that you lead us into all truth. Let your name alone be glorified. Help us to understand the mysteries that you have hidden for us in your word. Reveal to us, Lord, so that we may live according to what you want us to. And let your name be glorified. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. So as we're looking into 1 Corinthians chapter 15, as I told you, there are two sections. 1 Corinthians chapter 15 can be divided into two sections. I'll read for you the first section as the first 11 verses. The first 11 verses. पहली कोरिन्थियों की पत्रिका 15 अध्याय दो भागों में विभाजित किया गया है. पहले वचन से 11वें वचन तक पहला भाग और बाकी के जो वचन है वो दूसरा भाग. तो इसके थीम अगर देखेंगे तो सबसे पहले अनेक विषय के बारे में पौलुस ने ऑलरेडी हमसे चर्चा कर लिया है. इस किताब में अनेक इम्पोर्टेंट मुद्दों के बारे में पौलुस ने चर्चा कर लिया है. किस तरीके से कलीसिया में तनाव और मूर्ति पूजन और विश्वासी, और उसके बाद में जो दान किस प्रकार से देना है और सेवकाई को कैसे सपोर्ट करना है, और उसके बाद में जो शादी के विषय, और उसके बाद में पवित्र आत्मा के वरदान कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, तमाम चीज़ों के बारे में हम देखते हैं. और ख़ास कर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखना है, जो फर्स्ट कोरिन्थियंस में हम लोग पाते हैं, उसको इसलिए याद रखना है क्योंकि उसका कंटिन्यूएशन हमें सेकेंड कोरिन्थियंस में भी हमको मिलेगा. तो दैट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट कोरिन्थियंस में जो हमें याद रखना है वो ये है कि एक व्यक्ति कलीसिया में था जो बहुत बड़ी गुनाह कलीसिया में कर रहा था. There was one person in the Corinthian church who was actually doing, if we read it in chapter 5, was actually involved in a very wrong act of sin, and Paul has very harsh words for him. एंड पौलुस हम देखते हैं कि बहुत ही कठिन बातें इस व्यक्ति के लिए लिखते हैं कि उनको शैतान के हवाले कर दो ताकि शरीर अगर तकलीफ ले फिर भी आत्मा बचाया जाए. तो ऐसे तमाम चीज़ों को ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेकेंड कोरिन्थियंस में कंटिन्यूएशन इसका होता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है. सो इतने सारे चीज़ों को हम देखने के बाद, जैसे अभी हम ऑलमोस्ट अंत में आए हैं, ऑलमोस्ट कम टू द end of this episode. So now here in this chapter again, this is a very important chapter. You can write down, if you're writing down, chapter 15 verse 1 to 11 is the gospel of the Lord Jesus Christ. Chapter 15 verse 1 to 11 is the summary of the gospel of the Lord Jesus Christ. In fact, Paul writes the whole gospel here in these 11 verses. ये 11 वचनों में पौलुस सारा जो सुसमाचार है, the whole gospel is written down for us here. What is, when we say we are Christians, जब हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, तो क्या विश्वास करते हैं? What is our faith? So the whole summary of our faith, पूरा हमारा विश्वास का जो सारांश है, it is summarized over here. यहाँ पे बताया गया है पहले 11 वचनों में. So if we read here, we see that Paul says, now I would remind you, brothers, of the gospel I preach to you, which you receive, in which you stand. So you see over here, what happened to them is the same thing happening to us. तो उनको जो हुआ वही चीज़ हमको भी आज हो रहा है. काल बदल गया है. It's been 2000 years, long time, but the spiritual aspects, they remain the same. Paul says that he is reminding the Corinthian brothers and sisters of the gospel that he preached to them.
सो पौलुस कहता है कि मैं आपको याद दिला रहा हूँ भाइयों, वो सुसमाचार जो मैं सुना चुका हूँ, मैं आपको बताया था। पौलुस याद दिला रहा है, इज रिमाइंडिंग, एंड देन ही सेज व्हेन आई प्रीच टू यू व्हाट हैपेंड, यू रिसीव्ड इट and now you stand on it. So you see with our life also, हमारे जीवन में भी देखेंगे पौलुस यहाँ पे कहता है जब मैंने वो सुसमाचार आपको सुनाया, आपने क्या किया, उसको ग्रहण किया और अभी उसमें आप स्थिर हैं, आप खड़े भी हैं उसके अंदर। तो यही चीज़ हमारे जीवन में भी आज हम देख सकते हैं, हमने सुसमाचार सुना, ग्रहण किया और उसमें स्थिर है। 3 stages: listening the gospel, accepting the gospel, believing and standing firm. All the 3 stages are equally important. तीनों चीज जो है सुनना, ग्रहण करना और उसमें बने रहना, standing firm. Second verse, Paul says, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preach to you, unless you believed in vain. Now Paul is trying to be a little strict over here. पौलुस यहाँ पर थोड़ा सख्त होना चाहता है, क्योंकि कोरिन्थ की जो विश्वासी भाई बहन थे, हमें जैसे शुरुआत से मैं बता रहा हूँ, उनका मन तुरंत ही भटक जाता था, यहाँ वहाँ दुनिया की चीज़ों में इजीली भटक जाता था, आसानी से भटक जाता था। इसीलिए यहाँ पे पौलुस कहते हैं दूसरे वचन में, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, उसी से उद्धार होता है। So our salvation is based on the gospel which Paul is preached over here. You need to understand, which the apostles preached, which Paul preached. So our salvation by which we are being saved, Bible says. But it doesn't end over there. Paul goes on and says, if you hold fast, अगर तुम उसको स्मरण रखते हो, तो स्मरण रखना जो है जरूरी बात है। स्मरण मतलब याद रखना, हर दिन उठते ही हमें सुसमाचार को याद करना है। Every day we need to remember the gospel as if it is the first day we believed it. When we believed the gospel the first day, जब हमने पहला दिन सुसमाचार सुनकर विश्वास किया था, the same zeal, the same faith we need to have every single day. We need to hold fast to the gospel. Every day we wake up, we need to remind ourselves, Jesus died for my sins. What are the elements of the gospel? We need to remind ourselves every day. That is how we are going to hold fast. Because if we don't do that, Paul says, unless you believe in vain, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है, नहीं तो if we tend to forget what is our faith, what is our gospel, if we get distracted, अगर हम दुनिया की चीज़ों में अगर हम चले जाए, भूल जाए सुसमाचार को, तो पौलुस कहता है कि तुम्हारा विश्वास करना जो है व्यर्थ हो जाएगा। अभी तीसरे वचन से अगर आगे बढ़ेंगे, now Paul gives us, as I told you, a compact summary of the gospel. अभी यहाँ पर तीसरे वचन से पौलुस एक कॉम्पैक्ट समरी देते हैं तो सुसमाचार का। कहते हैं, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। That is the gospel. According to the scriptures, what is the gospel? According to the scriptures, Christ died for our sins. That's the gospel. तो पौलुस कहता है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, all the prophecies of the Old Testament which said that the Messiah would come and die for us, that was the gospel. The prophecies were prophesying, looking ahead. But when Jesus came, each one of those prophecies was fulfilled. हर एक वो भविष्यवाणी प्रभु में पूरा हो गया। तो सुसमाचार अभी क्या है? ये है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, और इतना ही नहीं, चौथा वचन, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। That's the gospel. He was, according to the scriptures, he was crucified. According to the scriptures, he was buried. According to the scriptures, he rose again. वो मारा गया वचन के अनुसार, गाड़ा गया वचन के अनुसार, और वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा।
और उसके बाद 5वें वचन को देखेंगे, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। So after rising from the dead, after being alive, resurrected, Paul says over here that Jesus appeared to Peter, the 12 disciples, and then about to 500 of people. प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद पतरस को दिखाई दिए, कैफा मतलब सीफस मतलब पतरस को दिखाई दिए, चेलों को दिखाई दिए, 12 चेलों को, उसके बाद 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिए, जो पौलुस कहते हैं कि उनमें से अभी तक मतलब जब पौलुस वो खत लिख रहा था अराउंड 50 AD समथिंग लाइक दैट, उस समय तक वो लोग जीवित थे और थोड़े लोग मर भी गए थे। उसके बाद में वर्स 7 और 8, फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। Then he appeared to James and to all apostles. And he appeared to James. Now who is James? We presume that James is the brother of the Lord Jesus Christ. In the Gospel of John, यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि उनके प्रभु के भाई प्रभु पर विश्वास तब तक नहीं किए होते हैं, लेकिन उसके बाद पुनरुत्थान हुआ मसीह को देखकर खुद याकूब, मसीह का भाई, यीशु मसीह का भाई, प्रभु का भाई, प्रभु को विश्वास करता है। That is why we have the book of James in the Bible. And then verse 8, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। So Paul is now humbling himself. पौलुस अपने आप को दीन करते हैं और सबको दिखाई देने के बाद वो कहते हैं कि प्रभु मुझे भी दिखाई दिए, मुझे भी प्रभु दिखाई दिए। मैं अयोग्य हूँ, मैं योग्य नहीं था प्रभु को देखने के लिए, लेकिन फिर भी अपने अनुग्रह से प्रभु मुझे दिखाई दिए, पौलुस कहते हैं। So basically if you see in verse 3 to verse 9, Paul summarizes the whole gospel for us. Verse 3 और 3 से 9 देखेंगे तो पूरा जो सुसमाचार जिसको हमने सुना है, जिसको हमने ग्रहण किया है और जिसको हमें पकड़े रहना है, जिस पर हमें स्थिर रहना है, उसको पौलुस यहाँ पर एक समरी में बताते हैं, सारांश में बताते हैं। और उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो verse 9 and 10 Paul talks about himself. He says that by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. So basically Paul summarizes the gospel. यहाँ पर पौलुस जो है विश्वास सुसमाचार को सारांश में बता दिए हैं। उसके बाद में कहते हैं पुनरुत्थान होने के बाद प्रभु सबको दिखाई दिए, पतरस को, चेलों को, उसके बाद 500 लोगों को, फिर याकूब को। उसके बाद पौलुस कहता है कि मुझे भी दिखाई दिया, मैं अयोग्य था, फिर भी पौलुस कहता है प्रभु मुझे दिखाई दिए और अपना अनुग्रह मुझ पर किया, और आज मैं जो भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। This is what Paul says over here. Now verse 11 is very important. पौलुस कहता है whether then it was I or they, so we preach and so you believed. So you see over here Paul is making a common statement. यहाँ पे पौलुस जो है एक common statement करते हैं, कहते हैं कि ये सुसमाचार है जो पहले बताया गया था। This is the gospel which you heard, which you received, on which you should stand. This is the gospel. And then he says, this is whether they or I, वो या मैं, वो मतलब the other apostles, the other 12 apostles, whether they or I, वो या मैं, किसने भी हो जो सुसमाचार प्रचार किया है, this is the same gospel. Whether it is they are preaching or I am preaching, वो प्रचार कर रहा है या मैं प्रचार कर रहा हूँ, it is the same gospel.
It is the same gospel that we preach and you believe. Hallelujah. So we have just discussed the first section. As I told you, there are two sections. Now moving on to the second section. जैसे मैंने कहा दो भाग है, पहला भाग मैंने आपको बता दिया है, दूसरे भाग की ओर अगर बढ़ेंगे तो the second section is predominantly focused on one topic, that is resurrection. दूसरा जो भाग है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय पर चर्चा करता है, एक ही विषय को पौलुस बताने की कोशिश करते हैं, that is resurrection and of course after resurrection the judgment which is going to follow. तो पौलुस जो है पुनरुत्थान और उसके बाद जो न्याय का दिन आएगा, पुनरुत्थान के बाद जो न्याय का दिन आएगा, उन विषय के बारे में ये दूसरे भाग में पौलुस हम लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें ये समझना है कि जब पौलुस क्यों यहाँ पर पुनरुत्थान के विषय में बताने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं, वजह क्या है, इसलिए ये करना पड़ा पौलुस को, क्योंकि कोरिन्थ की कलीसिया में ऐसी टीचिंग, ऐसी डॉक्ट्रिन, ऐसी शिक्षा चल रही थी, थोड़े ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि देयर इज नो रेजरेक्शन। रेजरेक्शन मतलब क्या है, व्हाट इज रेजरेक्शन, उनको समझना मुश्किल हो गया था, they couldn't understand it. So what did they do? They said simply resurrection is not there, there is no resurrection. That is why Paul makes it a point, यहाँ पर पौलुस इस पॉइंट को लेते हैं और कलीसिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कलीसिया गलत दिशा में जा रही है, ये सोच करके पुनरुत्थान नहीं है। तो पौलुस अभी इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम गलत शिक्षा में हो, तुम्हें अपने आप को सुधारना है, पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान है। इसलिए देखिए 12वां वचन में कहता है, इसीलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? How can some of you say that there is no resurrection of the dead when we are preaching that Christ has resurrected from the dead? जब हम प्रचार कर रहे हैं कि मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 500 से अधिक लोग उसके गवाह हैं, उन्होंने देखे, जिंदा खुदा को उन्होंने देखा है, तो हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं कि पुनरुत्थान नहीं है? पौल का एक सवाल, पौलुस का यह सवाल उनकी ओर है जो लोग कोरिन्थ की कलीसिया में कहते थे कि देयर इज नो रिजरेक्शन। नाउ पॉल ट्राइज टू मेक एन आर्गुमेंट टू दोस पीपल। पौलुस जो है उन लोगों को एक आर्गुमेंट बोलते हैं कि हम कैसे, पहले तो क्वेश्चन पूछा, नाउ ही ट्राइज टू आर्ग्यू विद देम, मेक रीजन विद देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सेइंग दैट देयर इज नो रिजरेक्शन। अभी पौलुस जो है उनसे बताना चाहते हैं कि क्यों आप कह रहे हैं, किस वजह से आप कह रहे हैं कि पुनरुत्थान नहीं है, क्या सोचकर आप कह रहे हैं कि पुनरुत्थान नहीं है? तो पौलुस ने पूछता है उनसे, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। इट्स ट्राइंग टू मेक अ रिवर्स लॉजिक। पौलुस यहाँ पे उन लोगों को समझाने के लिए, जो गलत रास्ते में वे लोग जा रहे थे, उनको समझाने के लिए रिवर्स लॉजिक यहाँ पे पौलुस करते हैं और कहते हैं, यदि ये अगर पुनरुत्थान है ही नहीं तो हम कैसे कहें कि यीशु जी उठा है? तो और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। मतलब पौलुस कह रहा है कि पहले तो अगर पुनरुत्थान नहीं है, अगर मरे हुए नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर मसीह नहीं जी उठा तो हम झूठा प्रचार कर रहे हैं, हम परमेश्वर के बारे में हम लोग झूठ कह रहे हैं लोगों को कि परमेश्वर ने मसीह को जिलाया है। सो ही इज ट्राइंग टू मेक अ क्रॉस रिवर्स लॉजिक, एक जो है लॉजिक, एक सोच, पौलुस ऐसी विपरीत सोच उन लोगों को देना चाहते हैं जो सोच रहे थे कि पुनरुत्थान नहीं है, उन लोगों को बताना चाहते हैं। और आगे कहते हैं, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, 16-17 पढ़ रहा हूँ, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए हैं
वे भी नष्ट हुए। यदि